कम नहीं, हम किसी से అందుకే ఈ వరంగల్లో ఖచ్చితంగా మీ అందరి నేతృత్వంలో, మీ అందరి శ్రమతో, మీ అందరి పరిశ్రమతో ఈ వరంగల్ గడ్డ మీద జరగనున్నటువంటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీజేపీని గెలిపించాలి. ఒకటి మాత్రం నేను చెప్పి ముగిస్తాను. కేసీఆర్ గాని రేవంత్ రెడ్డి గాని ఎవరెంత ఎగిరిగిరి పడ్డా, ఎగిరెగిరి అబద్ధాలు మాట్లాడినా, విమర్శించుకున్నా ఈ తెలంగాణలో రాబోయేది, ఎగరేది భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వమే అని ఈ సందర్భంగా మనయేస్తూ, హైదరాబాద్ తర్వాత అత్యంత వేగవంతంగా అభివృద్ధి చెందేటువంటి నగరంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ వరంగల్ జిల్లాను అన్ని రకాలుగా సమగ్రమైనటువంటి అభివృద్ధి చేసే సత్తా, అభివృద్ధి చేసే ఆలోచన ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీకే ఉందన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనయేస్తూ, అది నరేంద్ర మోడీ గారికే సాధ్యము. ఒకసారి ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్టు, ఒకసారి ఈ రైలు ఫ్యాక్టరీ, ఒకసారి రైల్వే నెట్వర్క్ పూర్తయిపోయిన తర్వాత దేశవాళీ కంపెనీలే కాదు, విదేశీ కంపెనీలను కూడా మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ తెచ్చాము. మరిన్ని రానున్న రోజుల్లో అన్ని రకాలుగా వరంగల్ని అభివృద్ధి చేస్తాము. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఈ టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక్క క్షణం కూడా వరంగల్ అభివృద్ధి మీద మాట్లాడే నైతిక హక్కు వాళ్లకు లేదు. రేపోడైనా ఓట్ల కోసం వస్తే నిలదీసి అడగండి, నిగ్గదీసి అడగండి అని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. గౌరవనీయులు కిషన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు. నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల పథకాలను ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకి ఇచ్చిన విషయాన్ని వారు చాలా సంపూర్ణంగా వివరించారు. ఈ సందేశాన్ని మనం ప్రజలందరికీ ప్రతి పోలింగ్ బూత్ లో కూడా అందరి దగ్గర తీసుకుపోవాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. ఇంకొక 3-4 నిమిషాల్లో మన జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ నితిన్ నవీన్ సిన్హాజీ ఇక్కడికి రాబోతున్నారు. దయచేసి వారు వచ్చిన తర్వాత కేవలం ఒక 40 నిమిషాలు మాత్రమే సమావేశం ఉంటది. అందుకోసం మనమందరం కూడా మరి ఎవరైతే ఇంకా అక్కడ బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దగ్గరకు వచ్చి కూర్చోవాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. వారు డయాస్ ఎక్కుతున్న సమయంలో మనమందరం లేచి మన యొక్క చప్పట్ల ద్వారా మరి నరేంద్ర మోడీ గారికి, మరి నితిన్ నవీన్ గారికి జిందాబాద్ ద్వారా మనం స్వాగతం పలకాలి. ఇంకొక 2-3 నిమిషాలు పడుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ పాట కూడా, నరేంద్ర మోడీ గారి పాట కూడా వేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు ముందు కూర్చోండి, ముందున్న వాళ్ళు కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి. కుర్చీలలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లేస్తారు. మీరు కూర్చోండి దయచేసి. డిస్టర్బ్ అవుతుంది, ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. కూర్చోవాలి మీరు. ఇప్పుడే మన దగ్గరికి రాజ్యసభ సభ్యురాలు మన జాతీయ నాయకురాలు రేఖా శర్మ గారు కూడా విచ్చేశారు. మన యొక్క బీజేపీ శాసనసభ పక్ష నాయకులు శ్రీ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు కూడా విచ్చేశారు.
వేదిక పైన ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవరి సీటు దగ్గర వాళ్ళు నిలబడాలి. దయచేసి ముందుకు రావద్దు, ఏమనుకోవద్దు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. మనం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా లేచి దగ్గరికి రావద్దు దయచేసి. ప్లీజ్ మీ మీ స్థానాల్లోనే నిలబడండి. ఆపండి దయచేసి అందరు కూర్చోండి కూర్చోండి అందరు కూడా పక్క జరగండి ఎవరి సీట్లో వాళ్ళు కూర్చోండి సుధాకర్ గారు వెళ్ళండి ఫోటోగ్రాఫర్స్ సెక్యూరిటీ అందరు కూడా పక్క జరగండి దయచేసి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోవాలి
6 జిల్లా అధ్యక్షులు, వరంగల్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లాలోని అధ్యక్షులు గడ్డ రవికుమార్ గారు, సంతోష్ గారు, బలరాం గారు, రమేష్ గారు, వల్లభ వెంకటేశ్వర్లు గారు, 6 అధ్యక్షులు సన్మానం చేస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చోవాలి. దయచేసి ఎవరు కూడా రావద్దు, మిగతా వాళ్ళు రావద్దు. అందరు కూర్చోవాలి. వెంటనే ఎవరు కూడా దగ్గర రావద్దు, వారికి దగ్గర రావద్దు ప్లీజ్. వనాల శ్రీరాములు గారు రండి, కూర్చోండి. జయంతలాల్ కూర్చోండి, అందరు కూడా పక్కెళ్ళి కూర్చోండి. కూర్చోవాలి ఎవరు కూడా. కూర్చోవాలి. రమేష్ గారు అందరు కూర్చోండి వెంటనే. కూర్చోండి ప్లీజ్. శ్రీరాములు గారు వచ్చి కూర్చోండి, మీరు మీ స్థానాన్ని గ్రహించండి. ప్రభాకర్ గారు కూర్చోండి, కూర్చోవాలి అందరూ. ఇంకా చాలు. కవచమువే బండి సంజయన్న. కూర్చోవాలి. మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్లీజ్ కూర్చోవాలి. వందే మాతరం ఉంటుంది, మీరందరూ కూడా కూర్చోవాలి. ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నాక వందే మాతరం అంతా సెట్ అవుతుందా? దయచేసి అందరూ కూడా లేచి నిలబడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. వందే మాతరం ఉంటుంది, వందే మాతరం గానం స్టార్ట్ చేయండి. వందే మాతరం, వందే మాతరం, సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం శ్యామలాం మాతరం, వందే మాతరం, శుభ్రజ్యోత్స్నాం పులకితయామినీ, పుల్యకుసుమిత ద్రుమదల శోభినీ, సుహాసినీ సుమధుర భాషినీ, సుఖదాం వరదాం మాతరం, వందే మాతరం, కోటి కోటి కంఠ కలకల నినాద కరలే, కోటి కోటి భుజై ధృత కర కరవాలే, అబలా కెనుమారత బోలే, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी, विपुदलवारिणी मातरं, वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि रिधि तुमि मर्मा, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे, वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण
भारत माता की। श्री नितिन नबी सिन्हा जी నాయకత్వం, నితిన్ నబీ జీ నాయకత్వం, మోడీ గారి నాయకత్వం. దయచేసి అందరూ ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు కూర్చోవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. हम यूनाइटेड वरंगल जिला से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री नितिन नवीन जी को स्वागत कर रहा हूं. आपके सबके तरफ स्वागत कर रहा हूं. ఇప్పుడు మన యొక్క రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ రామచంద్రరావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సభ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు, ఈనాడు మన మధ్యన వచ్చినటువంటి మన జాతీయ అధ్యక్షుడు శ్రీ నితిన్ నబీన్ గారు, కిషన్ రెడ్డి గారు, మన కేంద్ర మాత్యులు బండి సంజయ్ గారు, కేంద్ర మాత్యులు, అదేవిధంగా డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు, ఆశీష్ చెల్లార్ గారు, రేఖా శర్మ గారు, ధర్మారావు గారు, డాక్టర్ రాజేశ్వర గారు, సుధాకర్ రెడ్డి గారు, ఎల్ఓపి మన పార్టీ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, ఈ యొక్క వేదికను అలంకరించిన సీతారాం నాయక్ గారు, అందరికీ కూడా పేరు పేరున చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకొని మన అందరం కూడా మన జాతీయ అధ్యక్షుడి యొక్క సందేశాన్ని వినడానికి వచ్చినాం. ఈ యొక్క సభ వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒక వరంగల్ కార్పొరేషన్స్ మరి కొన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ కలిపి బూత్ అధ్యక్షుల మీటింగ్ అని చెప్పేసి ఈరోజు ఇక్కడ నిర్వహిస్తే ఇంత పెద్ద ఎత్తున బూత్ అధ్యక్షులు బిఎల్ఏస్ రావడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున నేను వారికి నమస్కరిస్తూ, మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలకు ఇక్కడ ఉన్న బలం చూస్తే రేపు జరగబోయేటువంటి వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగురుతుందని చెప్పి నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉన్నది. మిత్రులారా, వరంగల్ అడ్డ అంటేనే గతంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అడ్డ. ఇటు వరంగల్, హనుమకొండ రెండు జిల్లాలు అయినప్పుడు కూడా కార్పొరేషన్ ఒకటే కాబట్టి ఈ కార్పొరేషన్ మనం కైవశం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. గతంలో ఇక్కడ మేయర్ భారతీయ జనతా పార్టీది. ఇప్పుడు మనకు చాలా కాలం అయింది ఇక్కడ మనము ఎమ్మెల్యే కానీ కార్పొరేషన్ కానీ గెలవకుండా ఆ రోజు కిషన్ రెడ్డి గారు పర్యాటక మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఈ వరంగల్ జిల్లాలో రామప్ప టెంపుల్కి వరల్డ్ హెరిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వరంగల్ టౌన్లో మనం ఎన్నో పనులు చేయించి ఇక్కడ దాదాపు 1000 కోట్ల పనులు మనం ఇక్కడ చేయించినటువంటి ఘనత మనకే ఉన్నది. అది హాస్పిటల్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. రేపు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రాబోతుంది ఇక్కడ వరంగల్లో. అది కేవలం నరేంద్ర మోదీ గారు చేపట్టే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కాజీపేటలో రాబోతుంది. పిఎం మిత్ర టెక్స్టైల్ పార్క్ వరంగల్లో రాబోతా ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణకు అభివృద్ధి మాత్రమే భారతీయ జనతా పార్టీ లక్ష్యం. వరంగల్ నగరము బాగుపడాలంటే మన మా మిత్రులు చెప్తా ఉన్నారు, ఒక్క వాన పడితే ఈ యొక్క వరంగల్ కూడా సగం మునిగిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. హైదరాబాద్ కూడా అదే పరిస్థితి, ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి. ఈ యొక్క రెండు జిల్లాలు వారి అధ్యక్షులు ఉన్నటువంటి యొక్క సంతోష్ రెడ్డి గారు, రవికుమార్ గారు, మరి వారిని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను, మనకు ఈ యొక్క వరంగల్ కార్పొరేషన్ కైవసం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఏదో అది బీజేపీ కోసం కాదు, వరంగల్ ప్రజల కోసం. ఒక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా, బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా మీకు చెప్తాను మిత్రులారా, రేపు బీజేపీ వరంగల్ కార్పొరేషన్లో మీరు గెలిపిస్తే బీజేపీని కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక పథకాలు వరంగల్ ఒక నగరానికి, వరంగల్ కార్పొరేషన్కి మీరు తీసుకొచ్చి వరంగల్ని సుందర నగరంగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మరొకసారి మీ ద్వారా వరంగల్ కార్పొరేషన్ ప్రజల్ని, వరంగల్ జిల్లా ప్రజల్ని కోరుతా ఉన్నాను, వరంగల్ కార్పొరేషన్ గెలిపించిన తర్వాత 2028లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీని తెలంగాణలో గెలిపించి తెలంగాణలో అధికారం తీసుకురావాల్సిన ప్రయత్నం చేద్దాం మనందరం కూడా కలిపి అనేటటువంటి ఆలోచనతో మనందరం పనిచేయాలని చెప్పేసి మనం కోరుతూ, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చినటువంటి బూత్ అధ్యక్షులకు, బిఎల్ఏస్కు అందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మీడియా మిత్రులకు కూడా నేను మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై, జై శ్రీరామ్. भारत माता की,
ఇప్పుడు మనం ఎంతో సమయం నుంచి ఎదురు చూస్తున్న మన యూత్ లీడర్ అవర్ नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट श्री नितिन नवी जी सिन्हा जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं वे भाषण देने के लिए, संबोधित करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यूनाइटेड वरंगल डिस्ट्रिक्ट के पूरे अपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं के अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ की पूरी टीम, मंडल का मेरा अध्यक्ष, मेरे पार्टी का ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय सभी मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, मेरे अभिभावकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के अपने अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, चुनाव अधिकारी के रूप में मुझे नियुक्त किया, वैसे अपने के लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री प्रदेश चंद्रशेखर जी, गरिका बंती मोहन राव जी, हमारे पूर्व सांसद श्री पोंगु लेटी सुधाकर रेड्डी जी, अपने कर्नाटका के, तमिलनाडु के स्टेट को इंचार्ज, अपने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मेरे बड़े भाई आशीष शेलार जी, आदरणीय बहन डॉक्टर रेखा शर्मा जी जो सांसद हैं और हरियाणा से आपके बीच में आकर काम कर रही हैं, अपने नेशनल काउंसिल के जी प्रेमेंद्र रेड्डी जी और मेरे दोनों अध्यक्ष कोलानू संतोषन रेड्डी जी और श्री गंता रवि कुमार जी, मैं अपने दोनों इन अध्यक्षों को भी और जोरदार स्वागत करें अपने पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों का कि आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का निशान है, अगर आज पूरे देश में स्थान पा रहा है तो वो आप कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम से कहीं न कहीं आज भाजपा का कीर्तिमान पूरे देश और दुनिया में लहरा रहा है। मित्रों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के उस ऊर्जा के साथ बैठा हूं जिसकी ताकत से, जिन बूथ अध्यक्षों और बूथ के कार्यकर्ताओं की ताकत से हम सभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। मित्रों, आज के दिन मैं अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जरूर याद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको नमन करता हूं। उनका दृढ़ निश्चय ही था जो आज अखंड भारत के स्वरूप में हैदराबाद और तेलंगाना के भविष्य को हम नई दिशा देने में लगे हैं। मैं आज के दिन अपने उन वरिष्ठ नेताओं का भी अभिनंदन करता हूं और उन कार्यकर्ताओं का भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं जिन्होंने इस तेलंगाना के राज्य के गठन के लिए समर्पण भाव से, संकल्प के भाव से काम किया और तेलंगाना का सपना पूरा करने में आप लगे हैं। मित्रों, तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता संघर्षों का रहा है, ऐसा रिश्ता जो यहां की जनता के विश्वास के साथ है। और मैं मानता हूं जो सम्मान तेलंगाना की जनता ने 1984 में भारतीय जनता पार्टी को पहला सांसद यहां से दिया है, इसके लिए मैं तेलंगाना की जनता को हमेशा नमन करता हूं। मित्रों, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के लिए नई पार्टी है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, भाजपा का स्थापना 1980 में हुआ और अपने पहले ही चुनाव में
तेलंगाना में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिले थी, उसमें से 1 सीट तेलंगाना की जनता ने भाजपा को दिया था मित्रों। और मैं आज तेलंगाना की उस वीर भूमि पे खड़ा हूं जो वारंगल कहीं ना कहीं मैं मानता हूं हनम कोडा जैस का जो ये भाजपा को सीट गया था, वो सीट कहीं ना कहीं हम सब के लिए संकल्प का विषय है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं से आज मिलने आया हूं। तेलंगाना की जनता के जो अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार को मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि तेलंगाना की जनता और आप कार्यकर्ताओं के संघर्ष और परिश्रम के बल पर हम तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार 2028 में लाने का संकल्प लेंगे मित्रों। आइए हम तेलंगाना को एक ऐसी सरकार देंगे जो राष्ट्रवाद के विचारों से खड़ा होगा और जिसकी जड़ें हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारी विचार रही है उस विचार और संस्कृति से हम तेलंगाना के विकास को नया आयाम देंगे मित्रों। आज जब हम तेलंगाना के गठन की बात करते हैं तो मुझे हमेशा इस बात का याद रहता है कि जब तेलंगाना का गठन हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने लाभ हानि की चिंता नहीं की, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति की चिंता नहीं की, चिंता की तो तेलंगाना की जनता की भावना की चिंता की और तेलंगाना के निर्माण के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, बलिदान दिया और तेलंगाना के राज्य के गठन में संसद के पटल पर भी हमारी नेत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जो आवाज बुलंद किया, उस आवाज के साथ तेलंगाना का निर्माण का सपना पूरा हुआ है मित्रों। लेकिन मैं मानता हूं जिस सपने के साथ तेलंगाना की सरकार बनी थी, तेलंगाना को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था, कहीं वो सपना अभी कहीं न कहीं खो गया है। और मैं मानता हूं इन भ्रष्टाचारियों के और इन परिवारवादी पार्टियों के चक्कर में तेलंगाना का सपना कहीं ना कहीं खो गया है। उस सपने को फिर से जागृत कर तेलंगाना के लोगों के विकास के लिए निश्चित रूप से हम संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे मित्रों। हम मानते हैं सत्ता हमारे लिए कोई ऐसा साधन नहीं जिससे हम केवल सत्ता के लिए आते हैं। हम वैसी पार्टी हैं हम जो सेवा के माध्यम से सत्ता को लेते हैं मित्रों। और हम मानते हैं जब हम विपक्ष में भी रहते हैं तो जनता की आवाज बन के खड़ा होते हैं और जब सत्ता में होते हैं तो जनता की सेवा के भाव से काम करते हैं मित्रों। मैं आज भाजपा के एक कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आया हूं मित्रों, आइए हम भारतीय जनता पार्टी को उस मंत्र के साथ आगे बढ़ाएं कि भाजपा को अगर चुनाव में आगे ताकत से खैरना होना है, अगर भाजपा को विजयी बनाना है तो हर बूथ पे भाजपा का कमल खिलाना होगा मित्रों। तभी भाजपा का वो सपना जो आपने देखा है वो संकल्प के रूप में पूरा होगा मित्रों। मैं मानता हूं आज हमारे बूथ अध्यक्षों के इस कार्यक्रम में और उनके बूथ के टीम के सदस्यों के साथ मैं इस संकल्प को लेने आया हूं कि हमें हर बूथ को संपर्क करना है, हर बूथ में हर घर तक हमारा भाजपा कार्यकर्ता कैसे पहुंचे इसकी चिंता करनी है। हर नए मतदाता को मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम हमें करना है। हमें केंद्र की योजनाओं को निश्चित रूप से जनता तक पहुंचाने का, उसकी जानकारी पहुंचाने का काम हमें करना है मित्रों। साथ ही साथ समाज के हर वर्ग को जोड़कर भाजपा के लिए खड़ा करना है मित्रों। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जीवंत रूप से 24 घंटे काम करता है, 24/7 काम करने वाला कोई कार्यकर्ता है किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है मित्रों। राजनीति में कुछ लोग आते हैं जिसको मैं कहता हूं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। देश में जो कांग्रेस के नेता राहुल बाबा हैं वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और भाजपा का एक कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करता है, जनता की सेवा करता है मित्रों। मैं मानता हूं आज हम यहां पर जब आए हैं और आने वाले समय में पिछले जब से यह सरकार 2023 में बनी तब से जिन वादों के साथ ये सरकार आई, इस सरकार को जनता की चिंता नहीं, अपने परिवार और अपने पार्टी के लोगों की चिंता है। हम लोगों ने वो कालखंड भी देखा जब यहां की सरकार, उस समय की बीआरएस की सरकार, यहां के जनता के मेहनत और परिश्रम का पैसा
अपने परिवार के उत्थान के लिए खर्च करती थी, यहाँ के जनता के लिए नहीं खर्च देखती थी। उसी प्रकार से उस कठोर परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और कहीं ना कहीं उस बीआरएस की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया। भले ही जनता ने एक बार मौका कांग्रेस को दिया है मित्रों, लेकिन पिछले 23 से लेकर 3 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं। इन 3 वर्षों में इस कांग्रेस की सरकार का जो पुराना मॉडल है, वादा करो पर कभी निभाना मत, नहीं तो कांग्रेस का सरकार की पहचान नहीं बन पाएगी। कांग्रेस की सरकार की पहचान ही यही है, वादा करो और भूल जाओ। और मैं मानता हूं कि अब जनता भी उनको सबक सिखाने के लिए खड़ी है मित्रों। आप सबको उन मुद्दों के साथ सड़क पर उतरना है मित्रों। सरकार की एक एक नाकामी को, जनता की आवाज को, पूरी तरह से जनता की आवाज को उठाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे मित्रों। और इस परिवारवादी, इस भ्रष्टाचारी सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम कोई कर सकता है तो यहां पर बैठा हुआ भाजपा का कार्यकर्ता कर सकता है मित्रों। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए आज के इस सभा के बाद हम सभी निकल पड़े, हर गली मोहल्ले में जाए, हर परिवार से मिले, हर युवा से मिले, हर महिला से मिले और मिलने के बाद किसानों के साथ बैठने के बाद उनको सरकार की योजनाओं, जो केंद्र के योजना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, उन योजनाओं की भी जानकारी दे और साथ ही साथ यहां की सरकार की नाकामी की भी चर्चा हम नीचे तक ले जाए। हम जानते हैं कि जब भाजपा का नेतृत्व होगा तभी यहां का व्यापारी, किसान निश्चित रूप से विकास के साथ आगे बढ़ पाएगा मित्रों। हमने देखा है कि जिस सोच के साथ यहां की सरकार बनी थी, मैं आज देख रहा हूं कि 2 लाख नौकरी का वादा करने वाला, जो जॉब कैलेंडर का वादा करने वाला सरकार आज 2 लाख नौकरी तो दूर, केवल अपने पार्टी का एटीएम बनकर दिल्ली के दरबार को सजाने का काम यहां की सरकार कर रही है मित्रों। हम आज आपके माध्यम से उन युवाओं को भरोसा दिलाने आए हैं कि जो आश्वासन यहां की सरकार ने आपको दिया है, जो कहा था पिछले 3 वर्षों पहले कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, हम अपने युवाओं को जो शिक्षा ले रहे हैं उनको जो स्टाइपेंड की मनी होती है, जो उनके शिक्षा में उनको जो अग्रिम राशि देने की बात थी, उस राशि से भी महरूम करने का काम यहां की सरकार ने किया है। हम युवाओं की आवाज बनकर सरकार को बाध्य करेंगे कि जो उसने किया कहा था उसको पूरा करो, नहीं तो तेलंगाना का युवा निश्चित रूप से सड़कों पे उतरेगा और सरकार को उखाड़ फेंकेगा मित्रों। मैं आज उन युवाओं को भरोसा दिलाने आया हूं, उन अपने महिलाओं को भरोसा दिलाने आया हूं, उन किसान भाइयों को भरोसा दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपके लिए काम करती है, आने वाले समय में आपके संघर्षों के साथ, आपके विश्वास को जीतते हुए 2028 में भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनाएगी और हमने कार्यकर्ताओं का संघर्ष आगे बढ़ेगा मित्रों। आज हम जिस प्रकार से लंबे समय तक इस तेलंगाना के राज्य को विकास के पैमाने पर जोड़ना चाहिए था, यहां के सरकारों ने कभी नहीं किया मित्रों। ये प्रदेश का ये स्थान जहां हम आज खड़े हैं, हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का स्थान है मित्रों। उनको भी कांग्रेस के लोगों ने सम्मान नहीं दिया मित्रों। जो तेलंगाना का यह धरती पुत्र था, उसको भी अपमानित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस के नेताओं ने किया है। ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी, ये नेहरू गांधी परिवार के बाहर किसी को सम्मान दे ही नहीं सकते, चाहे वो कांग्रेस का अपना नेता ही क्यों नहीं हो। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको दिल्ली में सम्मान नहीं दिया, दिल्ली के कार्यालय में भी उनको नहीं सम्मान दिया कांग्रेस के नेताओं ने। लेकिन मुझे दुख है कि उस धरती पुत्र को भी सम्मान देने का काम जब कांग्रेस ने नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देकर कहीं न कहीं उनके उस सम्मान के साथ जो उन्होंने इस देश के विकास में किया था, उस सम्मान को उनको लौटाने का काम किया है मित्रों। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि जो सपना, जो वादे, जो काम उन्होंने किए थे, उन कामों को भी
रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस की उस समय की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी आज अपने साथियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहती है कि हमारी पहचान उन परिवारवादियों की नहीं है, हम राष्ट्रवाद के विषय पर विश्वास करते हैं, हम तुष्टीकरण पे नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर विश्वास करते हैं। और हम वोट बैंक के लिए नहीं, हम विकास की राजनीति पर विश्वास करते हैं। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, जिसने आज पूरे देश और विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है, आज उस नेतृत्व के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मित्रों, लोग कहते हैं कि एक तरफ वैसे नेता खड़े हैं जो लटके हुए हैं, भटके हुए हैं और गुमराह होकर घूम रहे हैं, और एक तरफ एक ऐसा नेतृत्व है जो निर्णायक नेतृत्व है मित्रों, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, जिसमें देश को दिशा देने की क्षमता है, और जिसका नीति और जिसकी नीयत दोनों साफ है, जो जनता को सेवा के भाव से देखती है, जनता में उनके परिश्रम को, उनके सेवा के भाव को साथ उनके विकास के साथ जोड़ती है। मित्रों, हम लोगों ने देखा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, आज 25 करोड़ परिवारों को अगर गरीबी रेखा से बाहर लेके हम आए हैं, तो हमने उस अंतिम व्यक्ति की चिंता की है जिसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा संकल्पित रही है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री खाद्य योजना के माध्यम से उस कोरोना कालखंड में जब पूरा देश विश्व ठहर गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री खाद्य योजना से जोड़ा, और आज हर गरीब के घर में खाद्यान्न पहुंचाने का काम हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। मित्रों, आज करीब 60 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत की योजना को अगर सफलतापूर्वक कोई चला रहा है तो आपके नेता नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। मित्रों, देश में एक गरीब का बेटा ही रेवड़ी पटरी के वालों का दर्द समझ सकता है, जिनकी मां दूसरों के घरों में काम कर कर अपने घर का लालन पालन करती थी, वही माताओं का दर्द भी समझ सकता है, और जिसने खुद घर घर जाकर लोगों की सेवा की है, वही गरीब का दर्द भी समझ सकता है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवड़ी पटरी वालों को, जिनकी कोई चर्चा कभी नहीं होती थी, वैसे 75 लाख रेवड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना से जोड़ा, उनको स्वाभिमानी आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मित्रों, आज इस देश में लोग कहते थे एक समय कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है, पर नरेंद्र मोदी जी ने यह तय कर दिया कि देश के गरीब का पैसा कोई छीन नहीं सकता, कोई बिचौलिया खा नहीं सकता, और उन्होंने जनधन खाता लाया, और जनधन खाते के माध्यम से आज 51 लाख करोड़ रुपया सीधे दिल्ली की सरकार से चलता है, तो गरीब के खाते में सीधे पहुंचता है, कोई बिचौलिया बीच में उस पैसे का खा नहीं सकता। मित्रों, लोग कहते हैं कि इस देश को कैसे बदलाव आया, मैं कहता हूं मित्रों, बदलाव देखना है तो उन विषयों को देखो, उन महिलाओं के चेहरे को देखो। 12 करोड़ शौचालय बने, देश में ऐसे पहले कभी भी कोई सरकार नहीं बनी जिसने महिलाओं के सम्मान को समझा, महिलाओं के स्वाभिमान को समझा, महिलाओं के अधिकार को समझा। और हम कह सकते हैं कि आज महिलाओं को सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार दिलाने का भी काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, 12 करोड़ शौचालय योजना, 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी की योजना, और 4 करोड़ गरीबों को आवास योजना देना कहीं ना कहीं उस और कदम है कि हम किस प्रकार से इस देश की महिलाओं को सम्मान दिलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि हम इस देश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और आज कहीं ना कहीं 3 लाख करोड़पति दीदी जब बनकर आगे आई है, और जब जीविका दीदी के माध्यम से हमारी महिलाएं पूरी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जब काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं केवल अपने आप को स्वावलंबी नहीं, पूरे परिवार को ताकत और संबल देकर आगे बढ़ा रही है। मित्रों, इस देश में एक समय था कि कोरोना आया, पूरे विश्व में पूरा विश्व ठहर गया था, और लोग कहते थे कि भारत इस आपदा से कैसे निकलेगा। मित्रों, लेकिन उस आपदा को भी
चुनौती बनाते हुए, अवसर बनाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस आपदा की काल से भी भारत को निकाला। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि यहां पर बैठा हुआ एक एक लोग उस परिस्थिति को याद करे। उस कोरोना कालखंड में आपको पूरा फ्री वैक्सीन देने का काम किसी ने किया तो आपके नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया मित्रों। और वो फ्री वैक्सीन कहीं और नहीं बना था मित्रों, विश्व के किसी और देश में नहीं बना था, वो आपके ही देश भारत में बना था। यही है आत्मनिर्भर भारत की पहचान मित्रों। और 220 करोड़ कोरोना का वो डोज कहीं ना कहीं पूरे विश्व को स्वस्थ रखने में, सुरक्षित रखने में आगे बढ़कर आया मित्रों। मैं आज यहां पर हमारे कई लोग कहते हैं देश के अन्य अन्य भाग में घूमकर कि भारत में क्या बदला मित्रों। 2014 के पहले का भारत, देश के किस इलाके में आतंकवादी घटनाएं घट जाए कोई नहीं जानता था मित्रों। कब कौन आतंकवादी देश की सीमाओं में घुसेगा और नापाक हरकत करके निकल जाएगा मित्रों। लेकिन पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने भी इस देश के तरफ छिटपुट घटनाएं भी करने का कोशिश किया, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है मित्रों। आज का भारत सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जाना जाता है, आज का भारत एयर स्ट्राइक करता है और आज का भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के लोगों के सम्मान और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को भी जवाब देने का काम करता है मित्रों। आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस देश को बाहरी सुरक्षा से जो सुरक्षित करने का काम, बाहरी ताकतों से जो सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार तो कर ही रही है मित्रों, लेकिन इस देश को आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और देश में नक्सल की समस्याओं को, जिसका साक्षी ये राज्य भी था, उसको पूरी तरह से मुक्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने करके दिखाया है मित्रों। और हमने पूरे देश से नक्सल की उस समस्याओं को पूरी तरह से खत्म किया है। लेकिन हम मानते हैं कि जो जिस भी राज्य में जाइए, जिस भी देश में जाइए, उस देश और राज्य की विरासत और उसकी संस्कृति उसके भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प होती है। लेकिन हमारे देश में पूर्व की सरकारों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय धरोहर की चिंता नहीं की मित्रों। उसकी भी चिंता किसी ने की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज अगर हम कहते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हम कहते हैं कि महाकाल का वो स्थान जिसको आज पुनर्जीवित किया गया, और हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में पवित्र मंदिर किसी ने बनाया और उसको भव्य रूप दिया, तो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं आज इसलिए इस बात को करने आया हूं मित्रों। आज भारत पुनर्विकास के उस दौर में अपनी भारतीय संस्कृति की चेतना के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का भारत वो भारत है जो कश्मीर के लाल चौक पर भी तिरंगा लहराते हुए दिखता है। आज का भारत अपने तिरंगे के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करता मित्रों। एक समय इस देश में वो कालखंड था कि कश्मीर के लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहराता था, हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। ये वही सरकार है जो सरकार कांग्रेस की यहां चल रही है, ये वही सरकार वहां दिल्ली में बैठी है। आज जब मैं इस राज्य के विकास की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिस प्रकार से इस राज्य में एक सरकार ऐसी बनी जिसको समर्थन और जिसके विषयों को कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार भी आगे लेके चल रही है, वो था भ्रष्टाचार। और मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार जो उनके अपने पूरे डीएनए में है, आज उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को फिर से उखाड़ फेंकने का काम हमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को करना है मित्रों। मैं आज इसलिए इस विषय को लेके आया हूं मित्रों। इस राज्य में यहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात आई और बड़े पैमाने पर यहां की सरकार ने उसको लागू करने का काम किया, और हमने कहा था कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे और उसकी लड़ाई हम पूरी तरह से लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है कि हम गरीब को गरीब के आईने से देखेंगे, हम अनुसूचित जाति के लोग को अनुसूचित के आईने से देखेंगे, हम अपने जनजाति भाइयों को उन जनजाति भाइयों के समस्याओं के साथ देखेंगे, और उनके आरक्षण में कोई पीछे से आकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे, ये कतई हम होने नहीं देंगे मित्रों। इसलिए आज हम वैसे भारत के निर्माण में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जो पूरे देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मुझे दुख है कि आज जिन वादों के साथ यहां सरकार बनी, उन वादों को पूरा करने का काम यहां की सरकार ने नहीं किया। आज NH 163 के अंतर्गत यादगिरी वारंगल 99 किलोमीटर के 4 लेन सड़क का निर्माण का काम 1900 करोड़ की योजना से स्वीकृति देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तेलंगाना को पहला सीमेंट कंक्रीट राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज PM मित्र काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क जो 1700 करोड़ की योजना से विकसित हो रहा है, उसका भी काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मुझे काजीपेट में 521 करोड़ के योजना से जो रेलवे विनिर्माण इकाई का ट्रेनों के निर्माण का काम शुरू होने वाला है, उसको भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। लेकिन मुझे याद आया, काजीपेट में ये रेलवे कारखाना बहुत पहले बनना था। PV नरसिम्हा राव जी ने उस सपने को देखा था, लेकिन उसके बाद के समय में कांग्रेस की सरकार आई और उसको भटकाने का, लटकाने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस वारंगल की जनता के तरफ से नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने PV नरसिम्हा राव का भी सपना पूरा करने का काम किया और काजीपेट में जो कारखाना खड़ा होगा वो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार का नया अवसर सृजित करेगा। हम वारंगल को शहरी विकास की योजनाओं में 196 करोड़ के हेरिटेज सिटी के डेवलपमेंट कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं और निश्चित रूप से एक आधुनिकीकरण करते हुए इस शहर को भी हम विकसित करेंगे। आने वाले समय भारत की सरकार, हम ये मानते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि सड़क, बिजली, पानी, पुल, इमारतें निश्चित रूप से निर्माण करना हमारा दायित्व है। लेकिन उस सब से ऊपर इस भारत के भविष्य को बनाना है जो ज्ञान से, नवाचार से, तकनीक से और दूरदृष्टि से बन सकता है। और कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब और डीप टेक जैसे वैश्विक केंद्र बनाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। मित्रों, आपको याद होगा अभी से कुछ दिन पहले जब आर्टिफिशियल AI का बड़ा एनुअल पूरा ग्लोबल समिट हुआ और उस ग्लोबल समिट को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हो रहा था, तो विश्व के कई बड़े राष्ट्र के लोग भारत में जुटे थे और मानते थे कि AI की दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। उस बड़े एनुअल AI समिट को भी किसी ने धब्बा लगाने का प्रयास किया। जो उनके नापाक इरादे थे, जो नहीं सफल हो पाए, वो कोई और नहीं, यही कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो AI समिट में जाकर भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं उनको भी स्पष्ट रूप से कहता हूं, भारत की संस्कृति, भारत का युवा और भारत का नौजवान आपके भटकावे में अब आने वाला नहीं है। भारत का नौजवान आज AI के माध्यम से भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर के माध्यम से भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए आज का युवा सड़कों पे आएगा और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ेगा। मित्रों, आज मुझे जब मैं इस बीबी नगर के पास आ रहा था तो एम्स को देखने, एम्स के बारे में जानने का मौका मिला। एम्स का भी सपना किसी ने पूरा किया इस तेलंगाना के लोगों को, तो कहीं ना कहीं हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मैं आज अपने युवा साथियों, मेरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से आह्वान करने आया हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का समय आ गया है। आने वाले समय में जो वारंगल में लोकल बॉडी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आपको इसकी चिंता करनी है कि वारंगल के अंदर पूरी तरह से भाजपा का कमल खिलना चाहिए। मित्रों, हमें यहां की सरकार को पहला धक्का देना है। मित्रों, और वारंगल की जनता पूरी तरह से पहला धक्का देगी। 2028 के पहले का सेमीफाइनल ये है। मित्रों, इस सेमीफाइनल में यहां की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मित्रों, मैं अपने युवा साथियों, मेरे बूथ अध्यक्षों, मैं आपके बीच में आया हूं। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे ये वादा लेने आया है, ये संकल्प लेने आया है कि आइए, अगर आप 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2047 में विकसित
वारंगल बनाना चाहते हैं, 2047 में विकसित तेलंगाना बनाना चाहते हैं, तो भाजपा का कमल हर बूथ पे खिलाइए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकसित तेलंगाना बनाकर देंगे आपको। मैं आज अपने उन सभी साथियों को इस बात को भी याद कराने आया हूं मित्रों, कि तेलंगाना के लोगों ने जो सपना देखा था, जो उसके गठन का सपना था, जो हमारी श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने जिन सपनों के साथ तेलंगाना के निर्माण की बात कही थी, वो सपना को कोई पूरा कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं मित्रों। तो आइए, आज वारंगल से आए हुए मेरे हर बूथ के भाजपा के कार्यकर्ताओं से मैं आज यही आह्वान करता हूं, हम विकसित वारंगल बनाएंगे, हम विकसित तेलंगाना बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेंगे मित्रों। आज के दिन जिस प्रकार से यहां पर हमारे सभी नेता जुटे हैं, इनकी ताकत का पहला परिचय आप है मित्रों। अगर आपने ठान लिया है कि भाजपा का कमल खिलाएंगे, तो हम सब नेता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर भाजपा को कमल खिलाने में लगेंगे मित्रों। अब मैंने कह दिया है, कोई ये चिंता मत करे कि मैदान में कौन कमल लेके आएगा। अरे जो कमल लेके आएगा वही भाजपा का वाहक होगा, उसी के नेतृत्व में भाजपा का कमल खिलाना है मित्रों। हमने कई बार अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है मित्रों। आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है। तभी आज भाजपा इस प्रकार से विशाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसका श्रेय किसी को जाता है तो आप कार्यकर्ताओं को जाता है। तो अगर पूरे देश में कमल खिल रहा है, तो वारंगल में भी और तेलंगाना में भी कमल खिलाने का संकल्प हम सभी कार्यकर्ताओं को लेना है। तो आप सभी तैयार है ना? मैं आश्वस्त रहूं ना? भाजपा का कमल खिलाएंगे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वारंगल और तेलंगाना में भाजपा का नेतृत्व वाली सरकार बनाएंगे। तो जोर से नारा लगाइए मेरे मित्रों, दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वारंगल, जय तेलंगाना। हमारा వరంగల్ అధ్యక్షులు గంటా రవికుమార్ గారిని వందన సమర్పణ చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా బూత్ అధ్యక్షుల సమ్మేళనానికి వచ్చిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు నితిన్ నబీన్ సింహ గారికి, మరియు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారికి, బండి సంజయ్ గారికి,
మరియు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎన్ రామచంద్రరావు గారికి, ఈ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ అభయ్ పాటిల్ గారికి, మరియు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలు, మాజీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ అధ్యక్షులు, భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ ధన్యవాదములు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతం చేసిన బూత్ అధ్యక్షులకు, మండల అధ్యక్షులకు మరియు పోలీస్ శాఖకు, ప్రత్యేకంగా మీడియా లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి కూడా ఈ న్యూస్ కవరేజ్ చేస్తున్న మీడియా మిత్రులందరికీ, మరియు ఈ మైదానం ఇచ్చిన ఆర్ట్స్ కాలేజ్ యాజమాన్యానికి, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా పరోక్షంగా ఈ సమ్మేళనాన్ని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ భారత్ మాతాకి జై. జై భారత్ మాతాకి జై. ఏ భరత మాత ముద్దు బిడ్డ నరేంద్ర